So in this video going to talk about components of battery charger circuit. So before starting with the components, let's get started with what is battery charger and where it is located. First of all, battery charger is the component, or can say it is part of SIV, static inverter, and it is located in SIV, static inverter. Now what is the requirement of battery charger? Battery charger is basically used for generating two supplies. First is the AC and second is the DC. In AC supply, single phase 240 volt 50 hertz AC, and DC output is the 110 volt DC. Right now, what is the requirement of this single phase 240 volt AC supply? For it is like for it is just used as a socket supply for charging the mobile phone and for charging the laptops for the passengers. And apart from that, this socket supply 240 volt single phase AC, it is located in cab as well for the train driver, for the charging of tetras and all, for the tetra communication. As we all know, first of all, what is tetra? Tetra is just like a walkie talkie in order to communicate with the people, right? In order to communicate with OCC, O mainline, and DCC in case of depot, right? So that is not the topic, right? I'm just giving the example what is the requirement of what are the like places where we are using this 240 volt single phase AC supply. And second is the DC supply. In DC supply, the output is 110 volt DC, right? So here, as we can see, type of output, there are two types of output. First is the AC output and second is the DC output. AC output is 240 volt AC, and then plus minus 5% is the variation, and DC output is 110 volt DC plus minus 5% is the variation. Now one thing which I was about to tell, there was this topic which was left to cover. What are the protection schemes for APS major failure and minor failure? In my upcoming video I am going to discuss about both of this topic, which is very important to talk, as we have already discussed about APS major fault and minor fault. What is major fault and minor fault, and what are the causes of both these faults? So in my upcoming video I'll be discussing about what are the protection schemes for both of this failure. Okay, so here, so now what is the requirement of DC output? DC output, as I said, जैसे कि मैंने बात किया, DC output 110 वोल्ट DC. अब ये DC की क्या रिक्वायरमेंट होती है? यहाँ पर हमारी ट्रेन में DC सप्लाई की क्या रिक्वायरमेंट होती है? सबसे पहला एमरजेंसी केसेस में हमें DC सप्लाई चाहिए होती है. इन सेकंड कंडीशन अगर हम लोग देखें, ट्रेन की बैटरी को चार्ज करने के लिए DC सप्लाई चाहिए होती है. और तीसरा अगर हम लोग देखें, कंट्रोल पावर सप्लाई के लिए DC सप्लाई की रिक्वायरमेंट होती है, राइट. तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें 110 वोल्ट DC सप्लाई की क्या रिक्वायरमेंट होती है, कि अब क्यों रिक्वायरमेंट होती है? सबसे पहला, ट्रेन बैटरी को चार्ज करने के लिए, ट्रेन की जो बैटरीज होती है उसे चार्ज करने के लिए. यहाँ पर एक चीज़ अगर हम लोग नोट डाउन करें, ये जो 110 वोल्ट DC सप्लाई हमें जो मिलती है, ये हमें APS से नहीं मिलती है, अल्टीमेटली हमें ये बैटरी से ही मिलती है, राइट. इन APS और कैन सी इन स्टैटिक इन्वर्टर देयर इज दिस बैटरी चार्जर विच इज प्रोड्यूसिंग 110 वोल्ट DC सप्लाई एंड विच इज चार्जिंग द बैटरीज, एंड अल्टीमेटली 110 वोल्ट DC सप्लाई वी आर गेटिंग इट फ्रॉम द बैटरीज से ही हमें 110 वोल्ट DC सप्लाई मिलती है, राइट. फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें, टू प्रोवाइड कंट्रोल पावर सप्लाई प्रोवाइड करने के लिए भी 110 वोल्ट DC सप्लाई इज़ इंपॉर्टेंट. एंड देन टू प्रोवाइड एमरजेंसी पैसेंजर लाइटिंग. एमरजेंसी केसेस में अगर हम लोग देखें, ये 110 वोल्ट DC सप्लाई की रिक्वायरमेंट होती है. जैसे कि हमें पता है एक मोड होता है एमरजेंसी वेंटिलेशन मोड. एमरजेंसी वेंटिलेशन मोड ये बेसिकली VAC के साथ एसोसिएटेड है. इसमें होता क्या है, मान लेते जो VAC वो काम करना बंद कर देता है इन केस ऑफ फेलियर ऑफ APS. जस्ट इमेजिन दिस एग्जांपल, हमारा APS ख़राब हो जाता है, तो ऐसे केस में हमें AC सप्लाई नहीं मिलेंगी 3 फेस वाली. तो ऐसे केस में होगा कि सारे कंपोनेंट्स बंद पड़ जाएंगे, बट हमें AC को तो चलाना होगा, अदरवाइज जो पैसेंजर है उन्हें सफोकेशन होगा. सो इन सच केसेस देयर इज दिस 110 वोल्ट DC सप्लाई विच इज़ अवेलेबल, राइट. सो थ्रू दिस 110 वोल्ट DC सप्लाई वी कैन provide input to the emergency inverter which will convert this 110 volt DC supply in 3 phase supply. and ये जो 3 phase supply होती है, ये हम लोग emergency जो evaporator fan blower होता है उसको हम लोग फीड कर देते हैं, जो कि क्या करता है, एयर प्रोवाइड करता है, ब्लास्ट एयर प्रोवाइड करता है AC के डक्ट में 45 मिनट्स तक के, जिसके थ्रू वेंटिलेशन हमें मिलता है, पैसेंजर्स को वेंटिलेशन मिलता है 45 मिनट्स तक के, right. So these are the 3 examples, or can say these are the reasons for which you are using DC supply in train. First, for the emergency purpose, for the emergency lighting, for emergency ventilation, and for charging the train batteries, and to provide control power supply. कंट्रोल पावर सप्लाई के लिए भी 110 वोल्ट DC सिग्नल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. अभी यहाँ पर अगर हम लोग बैटरी चार्जर में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं उसके बारे में अगर हम लोग डिस्कस करें, तो सबसे पहला हमें मिलती है मेन सर्किट. मेन सर्किट में हमें क्या मिलेगा? मेन सर्किट में हमें बेसिकली मिलेगा थायरिस्टर रेक्टिफायर. अब ये थायरिस्टर रेक्टिफायर एक तरीके से कंट्रोल रेक्टिफायर होता है, जो कि क्या करता है, बेसिकली कन्वर्जन का काम करता है. तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने डिस्कस किया, थायरिस्टर रेक्टिफायर, इट रेक्टिफाइज AC इनटू, ये क्या रेक्टिफिकेशन करता है, AC सिग्नल
टर्मिनल का डीसी में, और ये जो डीसी है ये कॉन्स्टेंटली स्टेबलाइज हो रही होती है, राइट। तो थायरिस्टर कन्वर्टर तो नाम से ही पता चल रहा है ये क्या करेगा, बेसिकली एसी को किस में कन्वर्ट करेगा, डीसी में कन्वर्ट करेगा। फिर उसके बाद अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये बैटरी चार्जर में अगर हम लोग देखें जो कूलिंग मेथड होता है वो बेसिकली नेचुरल कन्वेक्शन होता है, नेचुरल एयर के थ्रू कूलिंग होता है बैटरी चार्जर में, या फिर हम लोग बोल सकते हैं ये जो हमारा जो एपीएस है इसमें जो कूलिंग होता है नेचुरल कन्वेक्शन के थ्रू भी होता है, और हम लोग फ़ैन भी लगाए होते हैं, एपीएस का फ़ैन होता है और वो फ़ैन के थ्रू कूलिंग प्रोवाइड होती है जितने भी जो कंपोनेंट्स होते हैं, राइट। कोई कोई ट्रेन में अगर हम लोग देखें अलग अलग ट्रेन में अलग अलग मतलब सिस्टम होता है, जैसे कि ये कोई कोई ट्रेन में नेचुरल कन्वेक्शन के थ्रू एसआईवी में कूलिंग होती है, और कोई कोई ट्रेन में अगर हम लोग देखें फ़ैन लगाए होते हैं वो फ़ैन के थ्रू एसआईवी में कूलिंग होती है, राइट। तो आउटपुट डीसी फिल्टर रिएक्टर, तो आउटपुट डीसी फिल्टर रिएक्टर भी होता है। तो जो आउटपुट डीसी फिल्टर रिएक्टर हो ये क्या करता है, स्मूथनिंग ऑफ आउटपुट वोल्टेज एंड आउटपुट करंट। ये जो डीसी फिल्टर रिएक्टर होता है ये क्या करता है, बेसिकली जो आउटपुट वोल्टेज और जो आउटपुट करंट है उसे क्या करता है, स्मूथनिंग करने का काम करता है। फिर उसके बाद अभी अगर हम लोग देखें कंट्रोल सर्किट, थायरिस्टर कन्वर्टर गेट कंट्रोल ऑपरेशन एंड देन इनपुट एंड आउटपुट प्रोटेक्शन अगेंस्ट एबनॉर्मल ऑपरेशन एंड कंपोनेंट फेलियर। जैसे कि इससे पहले हमने बात किया है कि जो एसआईवी है इसमें हमें कंट्रोल सर्किट भी मिलती है। अब ये जो कंट्रोल सर्किट है ये बेसिकली कंट्रोल ऑपरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, राइट। इनपुट और आउटपुट में भी मतलब जो कोई अगर एबनॉर्मल ऑपरेशन होता है, कंपोनेंट फेलियर हो जाता है तो उसके अगेंस्ट में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का भी काम होता है किसका, कंट्रोल सर्किट का। सो व्हाट आर द यूजेस ऑफ कंट्रोल सर्किट? सो फार वी हैव डिस्कस अबाउट थ्री कंपोनेंट। फर्स्ट इज द थायरिस्टर कन्वर्टर, second is the DC filter reactor, and third which we are talking about is the control circuit. Now what's the requirement of control circuit? It is basically for the control operation, and apart from that at input side and at output side if there is any abnormal operation which is happening and if there is any component failure then for that कंट्रोल सर्किट इज़ वेरी रिस्पॉन्सिबल, राइट। तो कंट्रोल सर्किट जैसे कि हमने बात किया, अगर कोई एबनॉर्मल अगर ऑपरेशन हो रहा है, कोई कंपोनेंट अगर फेल हो जा रहा है तो उसके लिए ये कंट्रोल सर्किट रिस्पॉन्सिबल है, कंट्रोल सर्किट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। फिर उसके बाद अभी अगर हम लोग देखें बैटरी चार्जर हेल्थ रिले, राइट। बैटरी चार्जर हेल्थ रिले इसका क्या काम होता है, इट गिव्स हेल्थ स्टेटस टू टीसीएमएस ऑफ बैटरी चार्जर। अब ये बैटरी चार्जर हेल्थ रिले का क्या काम होता है, ये बेसिकली हेल्थ स्टेटस देता है बैटरी चार्जर के, किसको देता है, टीसीएमएस को, राइट। तो बैटरी चार्जर हेल्थ रिले इट शोज हेल्थ स्टेटस ऑफ बैटरी चार्जर, और ये कहाँ पे हमें पता चलता है, टीसीएमएस में, राइट। बैटरी चार्जर आउटपुट फ्यूज़, यहाँ पर अगर हम लोग देखें बैटरी चार्जर का फ्यूज़ भी होता है, आउटपुट में फ्यूज़ लगा होता है, और ये जो फ्यूज़ है इसकी रेटिंग कितनी होती है, 500 एम्पियर तक की होती है। फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द आउटपुट शॉर्ट सर्किट ऑफ बैटरी चार्जर आउटपुट, तो हम लोग बोल सकते हैं बैटरी चार्जर आउटपुट फ्यूज़ ये क्या करता है, बेसिकली आउटपुट में शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए फ्यूज़ लगा के रखे होते हैं जिसका जो एम्पियर है वो 500 एम्पियर है, राइट। फिर उसके बाद अभी अगर हम लोग देखें, इफ़ बैटरीज आर फुल्ली डिस्चार्ज दैन बैटरी चार्जर चार्ज बैटरी अप टू मैक्सिमम वोल्टेज। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जैसे कि हमने डिस्कस किया, व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ यूजिंग बैटरी चार्जर। बैटरी चार्जर क्या करेगा, 110 वोल्ट डीसी सप्लाई प्रोवाइड करेगा, और 110 वोल्ट डीसी सप्लाई से क्या होगा, बैटरी चार्ज होगी, राइट। अगर बैटरी अगर पूरी तरीके से अगर डिस्चार्ज हो जाती है तो ऐसे केस में जो बैटरी चार्जर होगा ये क्या करेगा, बैटरी को चार्ज करेगा उसके मैक्सिमम वोल्टेज तक, राइट। फिर उसके बाद अभी अगर हम लोग देखें, नोट डैट बैटरी चार्जर ऑफ ट्रेन्स आर कनेक्टेड पैरेलली। हमारी ट्रेन में अगर हम लोग देखें कितने बैटरी चार्जर लगे, कितने एपीएस लगे, 3 एपीएस है, TC1 TC2 और जैसे कि हमने डिस्कस किया था MC3 में, राइट। तो ऐसे केस में अगर हम लोग देखें बैटरी चार्जर कितने लगे, जो बैटरी चार्जर है वो भी 3 लगे, राइट। और ये तीनों कार के जो बैटरी चार्जर होते हैं पैरेलली कनेक्टेड होते हैं 110 वोल्ट डीसी ट्रेन लाइन के थ्रू, ताकि जो लोड करंट है उसे बैलेंस कर पाए। नोट दैट बैटरी चार्जर ऑफ द ट्रेन्स आर कनेक्टेड पैरेलली थ्रू 110 वोल्ट डीसी ट्रेन लाइन फॉर बैलेंसिंग द लोड करंट। 3 फेज बैटरी चार्जर आर कनेक्टेड पैरेलली विथ 110 वोल्ट डीसी ट्रेन लाइन। तो जैसे कि हमने बात किया, ये तीनों जो बैटरी चार्जर होते हैं, जैसे कि हमने बात किया 3 APS 3 SIV है, तो 3 बैटरी चार्जर हो गए, तो तीनों जो बैटरी चार्जर है ये पैरेलली कनेक्टेड होते हैं 110 वोल्ट डीसी ट्रेन लाइन के साथ, राइट। तो ये तीनों जो बैटरी चार्जर होते हैं पैरेलली कनेक्टेड होते हैं 110 वोल्ट डीसी ट्रेन लाइन के साथ। वाई दिस बैटरी चार्जर आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन विद 110 वोल्ट डीसी ट्रेन लाइन फॉर बैलेंसिंग द लोड करंट को बैलेंस करने के लिए, राइट। फिर उसके बाद अभी अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने बात किया करंट ट्रांसफार्मर भी लगा होता है, फिर उसके बाद वोल्टेज सेंसर भी लगा होता है। ये करंट ट्रांसफार्मर क्या करता है, बैटरी चार्जर के आउटपुट करंट के लिए होता है, राइट। वोल्टेज सेंसर ये क्या करेगा, जो बैटरी चार्जर है उसके आउटपुट वोल्टेज को क्या करेगा, सेंस करेगा। फ्यूज़ होता है 500 एम्पियर 690 वोल्ट का फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चार्जर फ्रॉम शॉर्ट सर्किट। ये जो फ्यूज़ है ये क्या करेगा, फ्यूज़ विल प्रोटेक्ट दिस बैटरी चार्जर
फ्रॉम शॉर्ट सर्किट। ये फ्यूज़ भी बेसिकली आउटपुट में लगा होता है, जो कि क्या करेगा, आउटपुट शॉर्ट सर्किट से बैटरी चार्जर को प्रोटेक्ट करेगा, राइट। फिर उसके बाद डीसी फिल्टर रिएक्टर, राइट, जैसे कि हमने बात किया फिल्टर रिएक्टर, इट इज़ फॉर द फिल्टरिंग पर्पस और टू रिमूव द करंट रिपल फ्रॉम द सिस्टम, राइट। तो ये सारे कंपोनेंट है। अभी यहाँ पर एक चीज़ अगर हम लोग नोट डाउन करें, जो रेटिंग होती है बैटरी चार्जर की कितनी होती है, 30 किलोवाट 110 वोल्ट डीसी। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट वी नीड टू रिमेंबर, व्हाट इज द रेटिंग फॉर द बैटरी चार्जर, इट इज समवेयर अराउंड 30 किलोवाट 110 वोल्ट डीसी, right. So far what are the components which we have discussed? First is the main circuit, and then first is the main circuit in which we'll get the thyristor rectifier which will convert AC into DC, and then we'll get the DC filter reactor, and apart from that we'll get fuse as well, and then current transformer, and then voltage sensor, right. तो ये सारे components है किसके, बैटरी चार्जर के, राइट। कंट्रोल सर्किट हो गई, फिर उसके बाद बैटरी चार्जर हेल्थ स्टेटस रिले हो गया, फिर उसके बाद बैटरी चार्जर आउटपुट में फ्यूज़ हो गया, राइट। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें बैटरी चार्जिंग करंट होता है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बैटरी के वोल्टेज से। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बैटरी में जो चार्जिंग करंट होता है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बैटरी वोल्टेज के साथ। बैटरी चार्जर आउटपुट वोल्टेज डिपेंड्स ऑन लोड करंट। जो बैटरी चार्जर का जो आउटपुट वोल्टेज है ये बेसिकली लोड करंट के ऊपर डिपेंड करता है, राइट। लोड करंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बैटरी चार्जिंग का जो करंट होता है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके साथ, बैटरी वोल्टेज के साथ। बैटरी चार्जिंग करंट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बैटरी वोल्टेज। बैटरी चार्जर का जो आउटपुट वोल्टेज होता है किसके ऊपर डिपेंड करता है, लोड करंट के ऊपर डिपेंड करता है, राइट। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें हमारी ट्रेन में एक बैटरी बॉक्स में कितनी बैटरी है, एक बैटरी बॉक्स में टोटल 80 सेल्स है, राइट। पर सेल का मैक्सिमम वोल्टेज कितना होता है, 1.4 से 1.5 वोल्ट होता है, राइट। 1.47 वोल्ट तक के होता है मैक्सिमम वोल्टेज जब हमारी बैटरी पूरी तरीके से चार्ज हो जाती है। तो अभी यहाँ पर वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, हाउ वी आर गेटिंग दिस सिंगल फेज 240 वोल्ट सप्लाई, राइट। अभी ये सिंगल फेज 240 वोल्ट AC सप्लाई हमें बैटरी चार्जर के थ्रू कैसे मिलती है, राइट। ये हमें सिंगल फेज 240 वोल्ट AC सप्लाई हमें ये बैटरी चार्जर से कैसे मिलते हैं। बैटरी चार्जर में अगर हम लोग देखें कुछ इनपुट ट्रांसफार्मर लगा होता है। ये जो इनपुट ट्रांसफार्मर होता है ये क्या करता है, जो APS में या फिर जो SIV में जो 3 फेज़ वोल्टेज जो बन रहा होता है उसको सिंगल फेज 240 वोल्ट AC सप्लाई में कन्वर्ट कर देता है, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें बैटरी चार्जर में बेसिकली इनपुट ट्रांसफार्मर होता है जो कि क्या करता है, 415 वोल्ट AC सप्लाई को 415 वोल्ट 3 फेज AC सप्लाई को, जस्ट होल्ड ऑन। बैटरी चार्जर में अगर हम लोग देखें इनपुट ट्रांसफार्मर लगा होता है जो कि क्या करता है, 3 फेज वोल्टेज को किस में कन्वर्ट कर देता है, सिंगल फेज 240 वोल्ट वोल्टेज में। तो हम लोग बोल सकते हैं बैटरी चार्जर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग दिस टू सप्लाईज, AC आउटपुट एंड सेकंड इज द DC आउटपुट, AC 240 वोल्ट सिंगल फेज AC सप्लाई एंड DC आउटपुट 110 वोल्ट DC सप्लाई। एंड देन वी डिस्कस अबाउट कंपोनेंट्स ऑफ बैटरी चार्जर, जिसमें हमने किसके बारे में बात किया, थायरिस्टर रेक्टिफायर के बारे में, DC फिल्टर रिएक्टर के बारे में, बैटरी चार्जर हेल्थ रिले के बारे में हमने बात किया। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया करंट ट्रांसफार्मर, वोल्टेज सेंसर, फिर बैटरी चार्जर फ्यूज़ के बारे में हमने डिस्कस किया, राइट। और ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बैटरी चार्जर का जो आउटपुट वोल्टेज डिपेंड्स ऑन लोड करंट, राइट। लोड करंट ज़्यादा होगा आउटपुट वोल्टेज भी उसी के हिसाब से उसका वेरिएशन होगा। और जो बैटरी चार्जर होते हैं सारे तीनों पैरेलली कनेक्टेड होते हैं 110 वोल्ट DC ट्रेन लाइन के साथ। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। इन माई अपकमिंग वीडियो आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट समथिंग सम अनदर टॉपिक।